questions from model papers, model test papers. Okay, this is on all problems in model paper on ratio and proportion. Shall we start? The ratio between the speeds of two trains is 7:8. If one train runs 400 kilometers in 5 hours, the speed, if the second train runs, no? Now here, what is given to you? First train and second train, no? What is the ratio of speed? 7. Now what are you given next? Second train runs 400 kilometers in 5 5. So is it 400 kilometer speed? 400 किलोमीटर की स्पीड है क्या? सर kms लिखा मतलब किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर से हो, सॉरी, कोई भी हो ना, किलोमीटर पर सेकंड हो तो कोई बात नहीं. एक मिनट. द सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स लिखा है, सेकंड कहाँ लिखा है? kms लिखा था मतलब. किलोमीटर्स, kms सेकंड नहीं होता है. अच्छा हाँ वो बीच में लाइन हो गया In 5 hours. So here what is given to you? 400 kilometers in 5 hours. तो ये क्या डिस्टेंस है ना, और ये टाइम है. टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. पता है फॉर्मूला? टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. ये डिस्टेंस ही है ना, 400 किलोमीटर कितने आवर्स में? 5 आवर्स. तो स्पीड क्या होगी? 80 किलोमीटर पर आवर ना. 400 किलोमीटर्स अपॉन आवर्स ना, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा ना. तो दैट इज 80 किलोमीटर्स पर आवर ना. 1 आ रहा है, 1 आ जाएगा ना. तो ये 80 स्पीड हुई ना इसकी. तो अगर ये 7 है तो ये 8 है, तो ये 80 होगा तो कितना होगा? 80 इंटू 7 अपॉन 8, दैट इज 70 is the answer. लिखो. First one. Okay. If a raised to b, a is to b, okay, is to b बोलते, okay, raised to नहीं, क्या is to, उसको क्या बोलते हैं? raised to. a is to, हाँ, b is equal to क्या? 3:4. The value of 2a plus 3b is to what? 3a plus 4b. क्या होगा? अब ऐसे सम में क्या करने का, सुनो, बहुत सिंपल है. क्या है?
A upon B is equal to what? 3 upon है ना? Now you want what? 2A plus 3. upon 3 plus 4. 3A plus 4B, isn't it? Now here 2A will be how much? Tell me. A, you take A as 3 and B is equal to 4. Yes. A is equal to 3. and B is equal to 4. How about you will do? 6 plus 12 6 plus 6. plus 3 into 4, 12. 6 plus 12 12 upon 6 no. plus 3A is 9, no? 9, 12 plus 16. Plus 16. Isn't it? Okay. 4B, no? 4 into 4. 3 into 3. That is 18 upon 24. This is 2 into 3. This is 3 into 3. and 4 into 4. Okay. What is the story? आया समझ में कि नहीं? Very simple sum. Shall we proceed? Option A is the correct answer. The numbers 2.5, 3.2, 1.5 and 2 are in proportion. They are in proportion. And their product of the means is 4 by 4.8. Find the product of extremes. It is obviously 4.8. Q. See here, you take this 2.4 into 2. How much it is? 4.8. This 2.4, 3.2, 1.5 and 2 are in proportion. That is, this first A upon B is equal to C upon D. That is 2.4 upon 3 by 2, 3.2 is equal to 1.5 upon 2. Proportion में मतलब क्या? A upon B is equal to C upon D. A upon B मतलब पहला क्या है नंबर? 2.4 upon 3.2. is equal to 1.5. upon 2, no? So these are the extremes. Extremes का product कितना है? 4.8 है ना? 2.4 into 2 आ रहा है 4.8 और इनका भी सेम ही होगा ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 3.2 into 1.5 वो भी कितना आएगा? 4.8 ही आएगा ना? तो product of what? If the numbers 2.4, 3.2, 1.5 and 2 are in proportion, their product of mean is 4.8. The product of extremes is also 4.8. अरे वैसे रूल भी है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. यहाँ पे चेक कर लो 3.2 और 1.5 मीन्स है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है. ओके, यस और नो? नो. If A raised to B is equal to what? C raised to D is equal to क्या? 3 is to 5. Then what is the value of AD? AD and BC. Now AD will be equal to BC now. Just now we did what? AD product of extremes and BC is what? Product of means, isn't it? So that ratio will be 1:1, no? AD is equal to BC or not? AD is equal to BC or not? AD is equal to BC. Then
देन आंसर विल बी व्हाट 1:1 करके बताओ। ये देखो इन्होंने बोला है a by b is equal to therefore AD is equal to BC, तो AD अपॉन BC क्या होगा? 1 इक्वल है ना दोनों, हाँ तो क्या आएगा? 1 1 आएगा ना। आए समझ में? द ट्रिप्लीकेट ऑफ रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट मीन्स क्यूब करो, 4 को क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 64 64, और 5 को क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा? 125। द आंसर इज सी, है ना। द रेशियो कंपाउंड ऑफ टू रेशियो, द कंपाउंड मीन्स मल्टीप्लाई, नो, याद है कि नहीं? द रेशियो ऑफ the ratio compound of two ratio 4:3 and 7:3 is, you have to multiply 4 into 7 कितना होगा? कंपाउंड रेशियो। सी, आई एक्सप्लेन टू यू क्या है इसमें। पहले क्या है, 4 is दूसरा 7:3 है ना, तो 4/3 इंटू 7/3 करो ना मल्टीप्लाई, तो 28/9, ऑप्शन बी। ओके, ये था सम नंबर 6, वेरी सिंपल सम। देन the ratio, of 2 quantities. seventh one, no, the ratio of two quantities is 5:9, its antecedent is 25, मतलब antecedent फर्स्ट वाला होता है कि लास्ट वाला? First फर्स्ट वाला। then the consequent is, 9 and this is, the antecedent is 25, the consequent is, मतलब क्या आएगा? आंसर 45 आएगा। 55 कैसे? बहुत सिंपल है। क्या रेशियो है? 5:9 है कि नहीं? हाँ, अब एंटीसीडेंट क्या है? 25 25 तो ये 25 है, तो ये साथ कितना होगा? 25 into 9 upon 5, that is 44 45 is the answer. Okay, option B. Seventh sum. Getting this? Follow this or no? Have you followed this? Seventh one? Sure? Eighth, the value of x if 4/5 is to x is equal to what? 9/2 is to 3/2. Now what you should do, you know, orally करना है, कैसे बताओ कैसे करने का? तुम लोग को पता है ये प्रपोर्शन में है ना, 4 है ना, they are in proportion, not in continued proportion. Now when they are in proportion, तो क्या होगा? Product of extremes, that is 4 5 and 3 4 4/5 and into 3/4 will be equal to product of means. no तो 4/5 into 3/4, 3 by 5 3/4, 4/5 into 3/4, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होगा बताओ? 4
कैलकुलेटर लो, बता रहा हूं, इसमें बता रहा हूं, डोंट वरी। 4/5 into 3/4, that will be 3/5. 12 by 20 नहीं 4 कैंसिल ना, हाँ 3/5 3/5 हो जाएगा। That will be equal to 9/2x, 9x/2, 9/2 into x, no? हाँ मी हाँ इजी करो है ना? फिर क्या करोगे, इंटू 2/9 करोगे तो x आ जाएगा ना। लिख के कहता था, सुनो क्या नंबर्स बताता हूं, सुनो क्या है। 4/5 x और is equal 9/2, is to 3/4. 3/5 it means 4/5 into 3/4 is equal to x into क्या, तो ये तो हमने निकाला क्या था, 3/5 is equal to x 9/2 ना, तो x क्या होगा, तो क्या आएगा 3/2. 6/45, what is the answer, 6/45 no, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 2 2/15 है कि ऑप्शन 2/15, नहीं नहीं सर 3/18. 3/18 नीचे 45 है. 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 2/15, तो आंसर इज नन ऑफ दिस, व्हाट इज द आंसर, none of this. none of this, okay. ओके अब इसको हम कैसे कर सकते हो, ओरली देखो, देखें, अब देखो ओरली करो, देखो मन में सोच, 4/5 कैलकुलेटर लो, फोर बाय 5 इंटू 3/4 करो, 3/5 करो करो 4/5 इंटू 3/4 0.6 आता है, हाँ 0.6 क्या है, 0.66 x इंटू 9/2 ना, लेफ्ट हैंड साइड पे 0.6 है, राइट हैंड साइड पे क्या है 9 x इंटू 9/2, ऐसा सोचो तो आएगा। फिर 9/2 को उधर लेके जाओ तो 0.6 इंटू 2/9 हो जाएगा, इंटू 2 डिवाइड बाय 9 क्या आया 0.30 0.13। अब ये 0.13 यहाँ पे पहचानना बहुत मुश्किल है ना। अब 15/2 तो 7.5 आता है, फिर 9/10 इज 0.9, 3/4 इज 0.75, तो आंसर क्या आया, नन ऑफ दिस। अगर कैसे पहचानने का वो भी तुम लोग को बताता हूँ, ओके। नाउ अब यही स्टाइल से 9th सम करेंगे हम, कौन सा, 9 हाँ, द फोर्थ प्रपोर्शन टू 2/3, 3/7, 9/4 एंड डैश, नो, फोर्थ प्रपोर्शन क्या है, ये 3 दिया है इसने, चौथा नहीं दिया है ना इसने, तो प्रोडक्ट्स ऑफ क्या होगा, सपोज चौथा x है, क्या है x है, मैं बताता हूँ, सुनो पहले मैं फिर मैं करके भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे मीन्स अवेलेबल है ना, हाँ तो 3/7 कैलकुलेटर लो, 3/7 इंटू 4/9, जो भी आंसर आया है ये किसका प्रोडक्ट है, मीन्स का। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे है या राइट, एक साइड पे है ना, समझो राइट हैंड साइड पे, कहाँ पे ये, अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, 2/3 इंटू एक्स होगा ना, फोर्थ, हाँ
तो इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3/2 हो जाएगा। सुनो ये क्या है, जो ये जो कैलकुलेटर पे तुम्हारे 3/7 इंटू 4/9 जो भी कैलकुलेटर पे आया ना तुम्हारे, दैट इज इक्वल टू 2/3 इंटू फोर्थ प्रपोर्शन नो, फोर्थ टर्म नो, इंटू फोर्थ टर्म इंटू 2/3 है ना, तो 2/3 को उधर लेके जाएंगे तो इंटू 3/2 हो जाएगा, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 2 करो क्या आता है 0.29। अब तुम लोग को ये नहीं पता चलता कि 0.29 है कौन सा, है ना। अगर ये 0.29 है, 0.29 मन में रखो, कैंसिल करो, 0.29 है ना। 2/7 देखो क्या है, 2/7 क्या आता है 0.29 आया ना। दूसरा एक मेथड भी बता सकता हूँ कैंसिल करने बगैर, तो आंसर ए है। क्या आंसर ए, मैं करके बताता हूँ सुनो। सम नंबर कौन सा है, ये तो ओरली किया हमने। हाँ, अब कौन सा 9th वाला था ना, क्या था 4/9 9th वन 2/3 3/7 4/9 एंड फोर्थ वाला मालूम नहीं था ना, तो 2/3 इंटू ए सपोज, हाँ ये ए था, इज इक्वल टू 3/7 इंटू 4/9, तो ए इज इक्वल टू व्हाट 3/7 इंटू 3/2। ओके, तो इसका आंसर क्या आता है 3 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 2। ओके, 0.2892857 आता है ना, कितना आ रहा है 0.2857। हाँ, अब है ना तुम लोग और एक टेक्निक बता रहा हूँ, तुम लोग के पास कैलकुलेटर पे 0.2857 है कि नहीं। हाँ, अब ऑप्शंस क्या थे हमारे पास, ऑप्शंस थे हमारे पास 2/7 14/8 7/2 और नन। ये 4 ऑप्शन है, ये आंसर है हमारा कौन सा, जबकि ऑप्शंस दिए इसमें। अब सुनो, अगर हम लोग ये ऑप्शन ट्राई करते रॉन्ग वाला, तो हमको लगता है 14/8 है, 14/8 इज इक्वल टू 0.2857, ये गलत है ना, ये चेक करना है। तो हमको क्या करने का, ये हमारे पास कैलकुलेटर पे है अमाउंट, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो 0.2857 तो 14 आता है क्या, 14 नहीं आ रहा है ना। अगर ये इसको मल्टीप्लाई, अगर ये सही है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा ना, डिनोमिनेटर और आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर आएगा ना। हाँ, तो नहीं आ रहा है, चलो ये करो 7/2 इज इक्वल टू 0.2857 नो, तो 2 इंटू 0.2857 नहीं आ रहा है, 5.6 आता है, 0.56 आ रहा है, या 57 आता होगा। अच्छा ये करो 2/7 इज इक्वल टू 0.2857, 7 इंटू 0.2857 99 कुछ आता है ना, क्योंकि वो बराबर है 2 ही है ना, ऑलमोस्ट वो 2 ही है क्योंकि हमने तो राउंड ऑफ लिया ना इधर। हाँ, अब देखो समझा ऑप्शंस कैसे करने का। अब देखो प्रॉब्लम में शॉर्टकट कैसे करने की थी। क्वेश्चन क्या था, कौन से 4 नंबर थे 2/3। हाँ, कैलकुलेटर लो। हाँ, तो पहले 4/7 सॉरी 3/7 इंटू 4/9 करो, किया क्या आया। हाँ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो। हाँ, तो इसको इंटू 3/2 करो 0.2857 आ गया कैलकुलेटर पे। अब तुम लोग को ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना। हाँ, अब ऑप्शन क्या था हमारे पास, पहला 2/7, तो तुम लोग ये 2/7 हो सकता है या नहीं भी हो सकता है ना। तो ये तो है, अगर इधर आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ के ये वाला कर रहा हूँ, कौन सा 14/8 वाला चेक कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ना इसको ये ना इधर सोचो इक्वल टू ये है क्या 2.8 है ना। एक मिनट के लिए सोचो कि 14/8 इज 0.2857, अगर ये सही बात है तो फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो इंटू 8 करो, तो आएगा 14 आएगा आंसर। 14 मिला क्या आपको, अगर सही होता तो 14 मिलता ना,
तो अब तो नहीं मिला, लेकिन अपना 0.2857 चला गया इधर, कैलकुलेटर से चला गया कि नहीं, खो गया कि नहीं, डिवाइड बाय 8 कर वापस, तो वापस पहुंच गए उधर ही। फिर क्या करो, ये ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर ये 0.2857 है तो फिर 2 से इंटू 2 करो, तो क्या आपको 7 मिल रहा है क्या? नहीं 7 नहीं मिल रहा है ना, तो ये भी गलत है, तो फिर वापस डिवाइड बाय 2 कर दो, वापस घर पे आ जाओ ना। फिर क्या करो, अभी ट्राई करते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो डिवाइड बाय आता है 2 आता है 1.9999 ऐसा कुछ आता है, तो मतलब ये ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये भी एक मेथड है कैलकुलेटर का। आया समझ में? फॉलो दिस। यहां पर भी मैंने बताया तुम लोग को कैसे करने का है ना, ट्राई करने का ना। अगर 2/7, ये तो आंसर आ गया, ओके। 14/8 करते हैं ना, 14/8 इज इक्वल टू 0.2857, तो 8 इंटू 0.2857 करो, अगर आपको 14 आंसर आ जाए तो फिर यही ऑप्शन है। नहीं तो फिर सबको डिवाइड करके देखना पड़ता, वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक टेक्निक और है, हमारे पास बहुत सारी टेक्निक होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मुझे एक टेक्निक आती है तो मैं एक टेक्निक से सीखूंगा। हमारे पास सब होना चाहिए, सब टाइप के हथियार होने चाहिए, कभी भी हमला हो सकता है और कोई भी हथियार कभी भी काम आ सकता है। ऐसे नहीं सोचने का कि मेरे पास AK-47 है तो मैं तलवार नहीं रखूंगा, हम लोग तलवार भी रखते हैं, AK-47 भी रखेंगे, ओके, लेकिन प्रॉब्लम पे हमला करने के लिए, किसी व्यक्ति पे नहीं, ओके। नाउ ये फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया। द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.4 grams and 5.6 grams is what? अब तुम लोग को पता है मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल? BC A by B, सी है, ये मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच में, इनके बीच में, किसके, दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शन है। इसका मतलब होता है मीन प्रोपोर्शन की स्टोरी ऐसी लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, ऐसे, A by B इज इक्वल टू क्या, B by C, ओके। A by B इज इक्वल टू क्या, अब पहला टर्म क्या है हमारे पास, मीन, ये मीन है, B इज द मीन, इसके एक फॉर्मूला है, B² इज इक्वल टू व्हाट, AC, हमारे पास A दिया और C दिया ना, तो B² इज इक्वल टू 1.4 इंटू, तो 7.84 आता है, तो B क्या है, रूट करो, रूटो 7.8, तो B इज इक्वल टू क्या, 2.8, ओके। B इज इक्वल टू 2.8, ये मीन प्रोपोर्शन होता है ना। अब देखो ये कैसे हमारे मीन प्रोपोर्शन, 1.4, 2.8, 5.6, ऐसा है कि नहीं, ये मीन वाला बीच में, तो इनका डबल हुआ कि नहीं, और फिर ये इसका डबल है, तो 1.4 अपॉन 2.8 इज 1/2, 2.8 अपॉन 5.6 इज 1/2 अपना, ये हाफ है कि नहीं, 1.4 डबल है ना इसका, ये डबल है ना 2.8, और ये 5.6 डबल है किसका, तो 1/2 है कि नहीं, यस और नो, फॉलो दिस। इफ समझे 2.8 आंसर आ गया, तो 2.8 ग्राम्स लेना, आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ओके।